what is our positioning in the domestic market, as far as the advertising industry is concerned. काली पीली टैक्सी टू द प्रीमियम टैक्सी. So Correct. हमने उसको ऐड करने से बिजनेस स्टार्ट किया. What was the main purpose and vision? If you could please tell us. So the main purpose of this is कि आज की डेट के अंदर कार्बन फुटप्रिंट हर ब्रांड को रिस्पॉन्सिबल ब्रांडिंग भी करनी जरूरी हो गई है. Do we actually cater to customers by giving them customized kind of solutions? क्योंकि हर customer अलग होता है advertising में. बिल्कुल सर. So we work as a concept house. We work as a partner to our brands. So we just don't work as an agency. Welcome friends, my name is Avinash Gorakshekar and I welcome all of you to another interesting episode of Connexa High Flyers. Friends, as all of you are aware, these episodes help us understand emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies. And in this process, we get a lot of valuable information as regards the company's business model, their growth journey, and their future growth plans. And all this helps our investors to take a very conscious investment call when they make in such companies. And friends, today we have got another interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Cash Your Drive Marketing Limited, and I have the privilege of having the chairman, managing director, Mr. Raghu Khanna. रघु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए. आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट सर दैट इन दिस स्मॉल मीटिंग we'll have a very good discussion and we'll be able to understand your company's operations in a much better way. Thank you for having me, sir. Yeah. So रघु जी, पहला सवाल जो हम लोग नॉर्मली सभी को पूछते हैं, सर अपना कंपनी का बिजनेस मॉडल समझाइए. ये तो मैं आपको पूछूंगा ही, पर सर मुझे आपको और एक सवाल पूछना था कि सर आप IITian हो, तो सर ये जो बिजनेस है एडवर्टाइजिंग का बिजनेस, इसमें आपने एंट्री कैसे किया? आई मीन व्हाट वाज द मेन मोटिवेशन एंड द पर्पस फॉर गेटिंग इनटू दिस बिजनेस आफ्टर कंप्लीटिंग योर IIT? नॉर्मली वी डोंट सी सच हाईली क्वालिफाइड प्रोमोटर्स गेटिंग इन दिस बिजनेस. तो सर इसके बारे में कुछ इफ यू कैन शेयर योर थॉट्स प्लीज. सर बेसिकली राइट आउट ऑफ कॉलेज 2009 मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. तो IIT करने के बाद दिस वाज माय फर्स्ट जॉब, फर्स्ट बिजनेस. Idea was to do something of my own and this was very intriguing. And when I found कि हमने गाड़ी के पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्लोगन देखा था, तो that caught my attention. Okay. तो जैसे वो लिखे होते हैं ट्रक के पीछे, ऑटो के पीछे, तो that really caught my attention. तो मुझे लगा यार ये अगर अटेंशन पकड़ सकता है तो कोई ऐड भी पकड़ सकता है. तो वहां से हमने ये प्रोसेस लाके हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया और आज 15 साल हो गए हमारे को, 15 प्लस साल हो गए इस बिजनेस को हम कर रहे हैं. और जहाँ तक है सर IIT is basically that helps you to have that entrepreneurial mind. Correct. So we have been by God's grace we've been successful in doing what we started off and that has really helped us. Okay. रघु जी, थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग बिजनेस के बारे में भी समझाइए कि कौन कौन से सेगमेंट में हम काम करते हैं. 15 साल आपने ये बिजनेस में काटे हैं, तो सर if you can give us some flavor on the advertising business, because that is where you started your journey. So if you can just give a small summary of what is our positioning in the domestic market, as far as the advertising industry is concerned. Sir, bilkul sir, what we are doing is we are into transit media. We started as a transit media company. अगर आपको ध्यान होगा 2009-10 के अंदर मेरू कैब, इजी कैब, मेगा कैब चलती होती थी दिल्ली के अंदर, कुछ आज भी हैं. तो इंडिया ने उस टाइम शिफ्ट दिखा था फ्रॉम काली पीली टैक्सी टू द प्रीमियम टैक्सी. सो हमने उसको ऐड करने से बिजनेस स्टार्ट किया एंड वहां से इसलिए हमने कंपनी का नाम रखा कैश योर ड्राइव की जो भी एनीथिंग व्हिच मूव्स विल बी एबल टू मोनेटाइज दैट इज व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज. So we are creating ancillary revenue for different infrastructure right now, different mobility factors जिनके ऊपर आप कहीं पे भी ऐड देखते हैं, बसेस के ऊपर आप ऐड देखते हैं. That is what our core specialty is. Okay. इसके अंदर we are now venturing into sustainable and EV buses जो नया है क्योंकि अब सरकार बहुत environment friendly चीजों को लेके आ रही है.
और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी चेंज हो रहा है। तो रघु जी, अभी ये जब आपने सस्टेनेबल ईवी के बारे में बात की है, तो सर इस बिजनेस के ऊपर आपका ब्रॉड विजन क्या है? यानी आई एग्री विथ यू कि गवर्नमेंट ने बहुत इंसेंटिव दिए है, गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करना चाहती है। तो सर हमारा मेन इंसेंटिव क्या था कि ये सस्टेनेबल ग्रीन इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो आपने इनिशिएटिव शुरू किया है, व्हाट वाज द मेन पर्पस एंड विजन, इफ यू कुड प्लीज टेल अस। So the main purpose of this is कि आज की डेट के अंदर कार्बन फुटप्रिंट हर ब्रांड को रिस्पॉन्सिबल ब्रांडिंग भी करनी जरूरी हो गई है. Not just visible branding but responsible branding, and doing advertising on such media really helps a brand create a different perspective altogether. All the buses which are EV buses, all these options are very new in the market and they are very expensive. अगर आप EV buses आज गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, आज की डेट में EV बस बहुत एक्सपेंसिव है than the regular bus. And these are all AC buses, right? So the kind of branding which comes on these buses is very beautiful. And उसके बाद क्या है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज है. और सस्टेनेबिलिटी के अंदर क्या है सर, जो ब्रांड्स हैं वो चाहते हैं कि उनके कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो किसी भी तरीके से, चाहे वो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन में कम हो, चाहे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में कम हो. और आज के डेट में बिकॉज मेजरली जितनी भी एडवर्टाइजिंग है वो सारी एनवायरमेंट फ्रेंडली थॉट प्रोसेस के ऊपर है. सब लोग सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं. आप आज घर पे पिज्जा मंगाते हो, उसकी पैकेजिंग सस्टेनेबल रिसाइक्लेबल उसमें आती है. आप पे फ्लाइट बुक कराते हैं, वो बताते हैं कि आपके कितने कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहे हैं. आप कोई टैक्सी बुक कराते हैं, वो बताते हैं. तो सस्टेनेबिलिटी इज द नेक्स्ट गेम चेंजर इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग वर्ल्ड ऑल्सो. ओके, then I think very nicely mentioned by you, रघु जी. रघु जी, अभी और एक इंटरेस्टिंग डेटा जो मुझे मिला है, जो मुझे आपको पूछना है. मुझे बताया गया है कि सर आपको इंडिया टुडे मैगजीन में you were featured among the top 30 entrepreneurs. Now tell me one thing, रघु जी, what was your background at that point of time when you were selected? And सर आपने ये बिजनेस में आपका कैसे आपने इसको एप्लीकेबिलिटी किया है? यानी how have you actually ensured that whatever you you were selected as one of the top 30 entrepreneurs? How did you put all this to work in our business? If you can please share your thoughts. So we have been before time at most of the things, so we have got a first mover advantage. So आज की डेट के अंदर 2000 जब मेरू का 2009 में शुरू हुई थी, तो we were the first ones to advertise on that, to tell them what advertising is, and started creating an additional revenue. आज EV buses नहीं आ रही हैं, so we are the first one to reach out to them and create an ancillary revenue options for them. So because of the entrepreneurial nature and because of an interesting story, a kid right out of college starting a business, and that too into a different space altogether. So we actually created a business out of thin air. So that has actually created a different media altogether, a different perspective where जब हम बिजनेस करने गए थे तो ब्रांड को पता नहीं था गाड़ी के ऊपर ऐड कैसे लगेगी मेरी. So हर आदमी को विजन वही था कि बस हमारा ब्रांड लगेगा कैसे. So that entrepreneurial nature helped me reach that stage where I was covered by India Today. Okay. Well, I think very nice to hear you talk about this, because as you rightly said, you were probably one of the very very early movers in this industry and उसका benefit आपको मिला. रघु जी, आप मेरे को बताइए, हमारा जो एडवर्टाइजिंग बिजनेस है पिछले 2-3 साल का, अगर मैं आपको ब्रेकअप मांगू कि प्राइवेट और गवर्नमेंट इसका क्या शेयर होगा? डू वी डू बिजनेस विद गवर्नमेंट एजेंसीज और आर वी प्योरली अ प्राइवेट काइंड ऑफ कस्टमर कंपनी? So sir, we do government as well as private work. So हम दोनों सेक्टर्स में काम करते हैं. हम we are registered with lot of government, state governments and central government also. और इसमें अगर आप देखेंगे सर, हमारा जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है और जो नॉन गवर्नमेंट रेवेन्यू है, वो मतलब पहले हमारा अबाउट 10% के आसपास गवर्नमेंट रेवेन्यू था 2023 के अंदर, और उसके बाद सर 10% से बढ़ के 40% हुआ और आज की डेट में हमारा 22% है गवर्नमेंट रेवेन्यू. पिछले ईयर तक हमारे को थोड़ा इफेक्ट मिला था गवर्नमेंट रेवेन्यू में, और प्राइवेट रेवेन्यू लेकिन हमारा 7.9% के आसपास है. ठीक है. और जो फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर था वो अप्रोक्सीमेटली उस टाइम 90% था. तो गवर्नमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है सारी चीजों को करने में. सो दैट इज व्हाई वो आज 10% से उठ के वो भी 22% के ऊपर आया है. देखिए, मुझे पूछना था रघु जी आपको कि अभी हमारा जो टोटल रेवेन्यू बेस है, इसमें से एडवर्टाइजिंग और सस्टेनेबल ग्रीन ईवी का जो बिजनेस है, इसका मोटा मोटी सर परसेंटेज कितना होगा? इफ यू कैन टेल अस इन अ वेरी ब्रॉड काइंड ऑफ बेसिस. बिल्कुल सर. हमारा फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर अबाउट 8% का रेवेन्यू था इससे,
और हाँ। फाइनेंशियल ईयर 25 में अबाउट 11.5% के आसपास का रेवेन्यू है, जो हाँ। सस्टेनेबल मीडिया एडवर्टाइजिंग के ऊपर है सर। ओके ओके, जो समझ ग्रीन मीडिया है जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर है ठीक सर। है, ओके समझ। Fine. Okay, now I wanted to understand, sir, within the sustainable EV business, which you mentioned now, sir, हमारे पास कितने EV के vehicles है, buses है, और ये कहाँ-कहाँ लोकेटेड है, सर, इसके बारे में कुछ बताइए। सर हमारे पास 1000+ व्हीकल्स हैं ईवी के, जो हमने लाइसेंसिंग पे लिए हैं, एडवर्टाइजिंग लाइसेंसिंग पे लिए हैं। और आज की डेट में हमारे पास आप लगा के चलिए यूपी जो सबसे बड़ा स्टेट है हिंदुस्तान का इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ पे हमारी एक्सक्लूसिविटी है। वहाँ पे हमारे अच्छा पास 714 महानगरों में 700 बसेस हैं सर। अच्छा, उसके बाद ओके गोवा एज अ स्टेट हमारे पास एक्सक्लूसिव है। ओके और उसके बाद सर सिटीज के अंदर आप देखिए हमारे पास सूरत में है, राजकोट में है, पूना के अंदर है। तो मिल मिला के टोटल हमारे पास 1100 के आसपास बसेस हैं ये। ओके, समझ, इससे ठीक है, क्या है समझ, हमारे को रीच मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी आई को थिंक नॉर्थ में काम करना है, किसी को वेस्ट में काम करना है, किसी को गोवा में काम करना है, तो किसी भी ब्रांड के लिए हमारे पास पूरी एक रीच है। बिल्कुल, नहीं आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझा है। रघु जी, मेरे को बताइए, नॉर्मली जब आप ये कंपनी से टाई अप करते हैं, फॉर ईवी सस्टेनेबल काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग, सर, इज दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर और ये 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप टेंडर नहीं में सर, ये मिनिमम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सटेंडेबल ऑन म्यूचुअल एग्रीएबल टर्म्स। ओके ओके, और सारी कंपनीज के साथ ऐसा है। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू, ठीक है। Yes, sir. ठीक। सर, अभी मेरे को बताइए, एडवर्टाइजिंग का जो पीस है, जो प्योर एडवर्टाइजिंग पीस हम चलाते हैं, सर, व्हिच आर द इंडस्ट्रीज व्हिच आर एक्चुअली शोइंग मैक्सिमम ग्रोथ फॉर अस? बिकॉज़ एडवर्टाइजिंग नाउ इज मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए हम काम करते हैं। बिल्कुल तो सर, मुझे बताइए, विद इन आवर काइंड ऑफ रेवेन्यू पाई ऑफ एडवर्टाइजिंग, व्हिच आर द सेक्टर्स व्हिच हैव एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू आवर ग्रोथ इन अ बिग वे? कुछ सेक्टर्स अच्छे चले होंगे, कुछ मॉडरेट चले होंगे, लेकिन इनमें से कौन से सेक्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे? सर, हमारे लिए बीएफएसआई सेक्टर और गवर्नमेंट पीएसयू सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज रेगुलर बिजनेस। सेकंड, ओके हम स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में काफी काम करते हैं। ओके, वी हैव बीन वर्किंग विद आईपीएल टीम्स फॉर लास्ट 10 years। ओके, उसके बाद सर, जो हमारा सेगमेंट आज की डेट के अंदर, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए, नेटफ्लिक्स आ गया, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऑप्शंस आ गए, वो सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद सर एफएमसीजी के लिए, क्योंकि क्या ये डेली कंप्यूटर के लिए है, ये मास प्रोडक्ट है जो हम आज की डेट में सेल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। सो मास प्रोडक्ट क्लाइंट लाइक एफएमसीजी ब्रांड is our customer, and we have seen a lot of growth in that. No, I think very rightly said. So it's a very well visible product for the masses which you are doing. So that's a good Yes. thing. रघु जी, अभी विद इन द एडवर्टाइजिंग पाई, जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू हम कमाते हैं, सर, इसमें कोई 4-5 बड़े कस्टमर्स हैं जो आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं? इज देयर अ काइंड ऑफ क्लाइंट कंसंट्रेशन फॉर यू? ये सर, मतलब अगर आप देखेंगे हमारे जो टॉप 5 कस्टमर हैं, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर 24 में अबाउट 60% हमारे कंट्रीब्यूट कर रहे थे। हाँ, और इस बार हमारे अबाउट 42% के आसपास टॉप 5 कस्टमर्स ने कंट्रीब्यूट किया। ओके ओके, ठीक, आई थिंक गुड। सर, अभी मेरे को बताइए कि आपके हिसाब से एडवर्टाइजिंग मार्केट, लेट्स टॉक अबाउट द मैक्रो अपॉर्चुनिटी। एडवर्टाइजिंग इज नाउ अ वेरी बिग बिजनेस, इट्स अ ह्यूज मार्केट फॉर अ प्लेयर लाइक यू। सर, व्हाट इज द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस? आपको क्या लगता है, अगले 3-5 साल में सर एडवर्टाइजिंग मार्केट कितना बड़ा है? व्हाट इज द टोटल एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी? एंड एज अ कंपनी व्हिच इज वेरी स्ट्रांग ऑन द एडवर्टाइजिंग साइड, सर, हाउ विल वी कैपिटलाइज ऑन दैट ग्रोथ? सर, इसके बारे में कुछ बताइए। Sir, advertising overall is a $1 billion market, more than a $1 billion market in India. And right now, अभी जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग है सर, वो इंडिया में काफी लेवल पे ग्रो कर रहा है, अबाउट 12 से 13% के CAGR पे ग्रो कर रहा है। इंडिया में भी डिजिटल का इतना पेनिट्रेशन नहीं है इन कंपैरिजन टू द वेस्ट। तो आज भी अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल को कवर करना है, सो आउटडोर इज वन ऑफ द मेन मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग। और आज के दिन में सब लोग बाहर हैं घर से, so people are spending less time on television, on print. वो ज्यादा टाइम घर से बाहर निकल के करते हैं। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सारा ऑन द मूव मीडिया पे है, चाहे वो बसेस पे है, चाहे वो कैब्स पे है, जैसे भी है, जो फॉर्मेट्स में हमारे ऑप्शंस है, वो आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर है। तो we see about 12 to 13% growth in this $1 billion industry.
Right. And there's a lot of things to come. And अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, सारा इंडिया अभी स्मार्ट सिटीज और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. बिल्कुल. इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने से ब्यूटिफिकेशन आएगी. ब्यूटिफिकेशन में एडवर्टाइजिंग स्पेस जो निकल के आएगा फॉर ब्रांड्स, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी एट दिस टाइम इन इंडिया. Correct. No, I think very nicely and articulately mentioned by you. प्रभु जी, आप ये बताइए, जो ग्रीन सस्टेनेबल ईवी का बिजनेस है, वो भी एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है. तो मुझे बताइए सर, इस बिजनेस को आप कैसे देखते हो? आप यू रियली मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू दैट द अपॉर्चुनिटी इज लार्ज, गवर्नमेंट इज आल्सो प्रमोटिंग दिस एक्टिविटी. सर, यहाँ पे आपको क्या लगता है, विल दिस मार्केट ग्रो एट अ फास्टर पेस इन द नेक्स्ट 3-5 years एंड दैट विल हेल्प अस? डेफिनेटली. आज के दिन में सर 1.5 लाख बसेस है इंडिया के अंदर जो सीएनजी और डीजल पे चलती है. ये सब अभी गवर्नमेंट कन्वर्ट कर रही है ईवी पे, फेम 2 फेम 3 स्कीम्स लाके, ताकि जितने ज्यादा ऑपरेटर्स आए, जितने ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स आए, प्लस इन बसेस को चार्ज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टैक्सीज को चार्ज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी सारा एक सीपीओ नेटवर्क का ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है. और टू कैटलाइज द होल ब्रेक इवन फॉर द बस ऑपरेटर एज वेल एज अ चार्ज पॉइंट ऑपरेटर, एडवर्टाइजिंग विल प्ले अ वेरी की रोल. ओके. चाहे वो चार्जिंग स्टेशन है, चाहे वो बसेस हैं, चाहे वो टैक्सीज हैं, टू कैटलाइज देयर ब्रेक इवन पॉइंट, एंड एडिशनल रेवेन्यू विल ऑलवेज हेल्प देम. ओके. जहां का ब्रेक पॉइंट x इयर्स में होना था, वो x माइनस y इयर्स में हो जाएगा फिर. ओके, समझ गया. रघु जी, मेरे को एक बात बताइए, अपना ईवी बसेस के अलावा हम ईवी चार्जर्स का भी बिजनेस में है, वो भी काम करते हैं सर. हम सीपी ऑपरेटर्स के साथ टाई अप करते हैं ताकि हम उनकी जो स्पेस है उसको मोनेटाइज करें. तो वो भी that is also part of the green sustainable media business, right? Apart from that is part. Anything which is helping the environment is a green sustainable media. अच्छा रघु जी, अभी मेरे को बताइए कि सर, मोटा मोटी ये जो प्री क्वालिफिकेशन नॉर्म्स होते हैं, अभी तो आपके पास काफी बड़ा एक्सपोजर है सस्टेनेबल ग्रीन ईवी बिजनेस में, बट initially were there any challenges to get into these people to agree to tie up with you? अभी तो सबको पता है कि cash or drive marketing is a very well known name, but initially did you have that struggle phase कि initially you had to convince yourself others that आप हमारे साथ जुड़ो, आपको हम visibility ज्यादा देंगे. तो सर, वो प्रोसेस कितना लंबा चला, और अभी now how is the environment? Is our customers directly coming to you to get a better kind of a feel from the advertising kind of opportunity? Sir, both sides, supply side and demand side, has been tough in the initial days. So convincing a vehicle owner to put an ad was a challenge. But once they started seeing money flowing in, और बिना कुछ extra किए हुए, so they were very happy at the end of the day. So because our same case was from the supply demand side also, where advertiser को कभी पता नहीं था कि गाड़ी के ऊपर ad कैसा लगेगा. So convincing, और जब उन्होंने विजिबिलिटी देखी उस सारी चीजों की, तो उनको इम्पैक्ट दिखा कि ये कितना बढ़िया फ्रीक्वेंसी मीडियम है, ये आपको कि हर सिटी के पार्ट में दिखेगा. बराबर. मूविंग का सबसे बड़ा है वो हर जगह प्रेजेंट है. तो अब ये हो गया कि अब ऑटोमेटिकली वी गेट क्वेरीज फ्रॉम द फ्लीट ओनर्स हु वांट्स टू मोनेटाइज देयर फ्लीट्स, फ्रॉम द ब्रांड्स आल्सो हु वांट्स टू यूज दिस मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग. सो वी हैव सीन अ सी चेंज इन द लास्ट 1 year at least. Okay. So I think nice to know that, Raghuji. Raghuji, now on the advertising side of the market, I want to understand that do we actually, cater to customers by giving them customized kind of solutions? क्योंकि हर customer अलग होता है advertising में. तो सर, वो हमारा strong point रहेगा कि customized solution, customer का thought process, उसका ब्रांड समझने के बाद आप उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो. तो सर, कैन दिस बी कंसीडर्ड टू बी अ काइंड ऑफ अ यूनिक प्रोपोजिशन फ्रॉम योर साइड कि कस्टमर को अगर अपने साथ रिपीट बिजनेस देना है, जुड़े रहना है, तो सर यू आर ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेटिंग द प्रोसेस एंड गिविंग समथिंग मोर टू द कस्टमर. सो इज दिस थिंकिंग राइट? बिल्कुल सर. सो वी वर्क एज अ कॉन्सेप्ट हाउस, वी वर्क एज अ पार्टनर टू आवर ब्रांड्स. So we just don't work as an agency कि हम उन्होंने कोई requirement दी. So we try to give them a solution, how they can improve their brand awareness, how they can increase the sale, how they can track their ROI. So वो बहुत ज़्यादा important है हर brand की image के लिए. और हर जगह का एक different solution है, whether they want a metro oriented solution या tier 1 or tier 2 town or rural area branding options. So we have to give them a tailor-made solution and a complete gamut of options, because everyone want a one point of solution. They don't want to rent to 10 different people.
एंड विद द काइंड ऑफ गैमेट, आज हम सर 11 प्लस सिटीज में प्रेजेंट है हमारा मीडिया, सो दैट गिव्स अ क्लाइंट अ कंफर्ट. सो अगर मुझे कहीं पे भी एडवर्टाइज करना है तो वी हैव अ वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑप्शन विद द इनोवेशन, एंड देयर आर क्लाइंट्स हु हैव बीन वर्किंग विद अस फॉर मोर देन 10 years now. Okay. We have been advertising is all about quirkiness and all about innovation. Correct. So we have to be different every time we do the brand. Okay. Then I think very rightly said by you. Prabhuji, now on the sustainable green EV business, tell me one thing, sir. अभी आपने बोला हमारे कुछ 1100 EV buses है all over, जहाँ पे हम काम करते हैं. मुझे बताइए सर, अगले 2-3 साल में what is the kind of broad target we are going कि हम लोग इसको कितना बड़ा करने की aspiration रखते हैं? सर हमसे ज्यादा तो सरकार इस टाइम एस्पिरेशन रख रही है इन सारी बसेस को बड़ा करने की. आज की डेट में आप देखिए 1.5 लाख बसेस सरकार को 2030 तक कोशिश करके ईवी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है. दिल्ली के अंदर 10,000 बसेस नहीं आएंगी, बॉम्बे के अंदर 6,000 बसेस नहीं आने वाली हैं. तो ये सब एक एडवर्टाइजिंग कैनवस की तरह हम देखते हैं इसको. तो फॉर अस इज ऑल अ मूविंग बिलबोर्ड. करेक्ट. So we are expecting we will have double digit X growth on this particular front on the number of buses. Okay, समझ. So opportunity for growth and the runway is very large according to you, which is very scalable. Very scalable. From Kashmir to Kanyakumari, every city, every town has bus service today, sir. And that will be now converted into EV. Correct. नहीं सर, बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बोला. सर अभी थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं. मुझे बताइए सर, लास्ट ईयर दैट इज FY24 आई वाज सीइंग दैट योर revenues have increased from 79 crores to 94 crores, and sir the profit after tax has also gone up quite well, 9.21 crores from 5.14 crores. तो सर पहले बताइए सर, FY24 का मैं पूछ रहा हूँ कि सर इसमें what was the main reason for this good jump in profitability? Was it better operating metrics like bigger volumes done by us both on the advertising and the sustainable green EV business, and possibly better margins which you got? So was it a combination of both these factors? Yes sir. So the biggest factor was we have converted into our own exclusive media where the margins are higher. Okay. So that is why you see the PAT improvement, where there was a shift from 3% in financial year 23 to this year we have done 20% on our exclusive media. Oh, okay. So that increase has actually helped us improve the PAT. Okay. Fine, understood. And sir, now we, whatever numbers have been presented in the prospectus, I was seeing that in the first half also the numbers are pretty impressive. You have done a revenue of 64 crores and a PAT of almost 8.32 crores. So you mean this momentum has continued in the current year? Sir, अगर थोड़ा बहुत if you can, tell us how this year has panned out, because अभी तो March already खत्म हो चुका है, but फिर भी whatever you can share with us for the investors. Sir, we have got about 20% of revenue from the exclusive media this year, and we have got about a top line of 140 crores. Okay. In that, the PAT is about 17 plus crores. Okay. So it has to be well for us. Yeah, so I think very nice performance, sir. I think you are right in saying कि margins have improved, performance भी अच्छा हो चुका है. सर मुझे बताइए, नॉर्मली हमारे धंधे में वर्किंग कैपिटल साइकिल कितनी लंबी होती है? बिकॉज वर्किंग कैपिटल इज मस्ट बी अ मेजर कंपोनेंट फॉर यू. सो सर, हाउ इज द वर्किंग कैपिटल साइकिल, हाउ डज इट वर्क फॉर अस? सर अभी जो करंट सिचुएशन है सर, हमारी अबाउट 140 डेज की वर्किंग कैपिटल साइकिल है सर. ओके, ठीक है जी. और वी आर प्लानिंग टू इंप्रूव दिस एंड ब्रिंग इट डाउन टू 90 to 120 डेज के बीच में. ओके, समझ. दूसरी बात सर, मुझे बताइए कि नॉर्मली हाउ क्विकली डू यू गेट द पेमेंट फ्रॉम दीज वेंडर्स? लाइक जहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस के ऊपर एडवर्टाइजिंग करते हो, मोटा मोटी अगर वो एडवर्टाइजिंग आपने 1 महीना लगाया तो ऑन अ मंथली बेसिस द कैश फ्लो इज गिवन टू यू, और इसमें कैसे हाउ मंथली बेसिस, बट देयर इज अ क्रेडिट पीरियड. So can I say outdoor थोड़ा unorganized market, it is not like TV and print where there are governing bodies who ensure that there are timely payments made to TV channels and newspapers. Outdoor is a bit disorganized, so that is the reason, sir, there are certain delays in the payment, and but the credit cycle is about 45 to 60 days from the end of the campaign. समझ, ठीक. अच्छा रघु जी, अभी एक सिंपल सवाल है जो बिजनेस के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि सर बेसिकली व्हाट इज द वैल्यू एड व्हिच यू गिव टू द फाइनल कस्टमर? कि कोई ईवी बिजनेस में अगर आपसे जुड़ना चाहता है, मान के चलिए कि
he says that okay, we know you have been present in the market. Sir, how do you ensure that the customer sticks with us for a long time? अपने को repeat business regularly अगर देगा तो हम उसको क्या value add देते हैं? क्या हमारी सर्विस अच्छी है, हमारी विजिबिलिटी अच्छी है, हमारी मार्केटिंग नेटवर्क अच्छी है? तो सर 2-3 क्वालिटेटिव पॉइंट्स हमको बताइए जिससे वी कैन अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल बेटर, बिकॉज फाइनेंशियल नंबर्स तो एक जगह तक ठीक है, but how you actually add value to the customer, both as you rightly said, now everybody knows there's a proper common logic in this business. तो सर एक दो पॉइंट्स हमारे लिए बताइए ताकि we can understand you better. Sir, we have approximately more than 20 plus sales team, and we give an end-to-end solution. We have strategies and in-house concept house, which creates ideas for the client. So Okay. the whole network of marketing really helps the client to reach out to the maximum number of customers for them. Okay. Plus, हमारा reach है, number of vehicles which we have across India, that is very large. So every pocket, every nook and corner, we can reach a brand. Correct. So उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि हमें काम देके आराम से, ताकि eventually वो ब्रांडिंग अवेलेबल हो जाए हर जगह. बिल्कुल बिल्कुल नहीं ठीक है रघु जी, लेकिन एक बात मेरे को पूछनी थी कि देखिए हर धंधे में कंपटीशन तो होता ही है, तो हमारे धंधे में सर व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी? वी हैव बिल्ट अ स्केल, वी हैव बिल्ट अ ब्रांड विजिबिलिटी जो आपने बोली है, बट सर इस धंधे में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज्यादा है या आई मीन सारे लोगों को धंधा मिलता है, लाइक इट इज अ ग्रोइंग मार्केट सो एवरीबॉडी गेट्स हिज शेयर ऑफ बिजनेस? इज इट समथिंग लाइक दैट? So it is a growing market, and advertising is something which is the main spending for any of the brand. It Correct. is only the format which keeps on changing. करेक्ट. So मेरे लिए सिर्फ आउटडोर ही नहीं, मेरे लिए एक डिजिटल मेटा और गूगल एड भी मेरे लिए कंपटीशन है. हाँ कोई क्लाइंट एग्जैक्टली, भी स्पेंड कर रहा है. बिल्कुल अब मुझे कितना उसमें से परसेंटेज मिलता है, that is the ability of my marketing skills as well as the media what we own, करेक्ट and the kind एग्जैक्ट of a ROI that media drives for a brand. करेक्ट करेक्ट. So it is Sir, all on the basis कि कितना ROI एक मीडिया क्लाइंट्स को लाके दे रहा है. क्लाइंट तो पैसा खर्च ही देता है आज की डेट में. नहीं, आई थिंक आपने बराबर बोला कि आपकी एबिलिटी कितनी है, उसमें से आपके लिए बिजनेस कितना आता है, लेकिन आई थिंक व्हाट यू सेड इज राइट कि देयर आर वेरियस ऑप्शंस, बट यू नो द आउटडोर मार्केट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. रघु जी, अभी मेरे को बताइए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आज इंटरव्यू का है, वी आर प्लानिंग टू गो पब्लिक, सो यू नो दिस इज अ बिग माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंपनी. सर मुझे बताइए कि हम लोग कितना कैपिटल मार्केट से रेज करेंगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी वी प्लान टू रेज, एंड सर इन व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग दिस मनी, किस तरीके के यूजेस हमने प्लान किए? सर अभी हम अप्रोक्सीमेटली 54 करोड़ रुपीस रेज कर रहे हैं मार्केट से, जिसमें से अबाउट 33 करोड़ वर्किंग कैपिटल में जाएगा, जिसमें हम एक्सक्लूसिव मीडिया इंक्रीज करेंगे. अबाउट 5.9 करोड़ से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में जाएगा, और 5.3 करोड़ के आसपास हम टेक्नोलॉजी में डालेंगे, जिसमें हम ऐप बेस्ड ROI नेटवर्क बनाएंगे फॉर ब्रांड्स. सो इट इज इजियर एंड ट्रांसपेरेंट फॉर ब्रांड्स टू यूज आवर मीडिया. Okay. And sir, I just wanted to understand one more thing कि sir अभी company public issue कर रही है, new investors are now going to believe you as a promoter, they will support you, growth is going to happen, so you know they will also join the growth journey going ahead. Sir, broadly as a promoter, you know, who has started this business from scratch and now we have reached this position, sir, you know, without giving any numbers, sir, broad message आप you know new investors को क्या देना चाहोगे सर? क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखिए हर एक बंदा इन्वेस्ट करता है रिटर्न के लिए, लेकिन फ्रॉम अ प्रमोटर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द ब्रॉड मैसेज यू वुड लाइक टू गिव देम? Sir, the biggest thing what we like to use your platform to reach out to all our shareholders is that we are part of a new age infrastructure. जो इंडिया में चेंज आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, जो सारी स्मार्टनेस आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हम उसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं. हम एक नए इंडिया का, नए प्रोडक्ट का, नए इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनने जा रहे हैं. और अभी जो हम मार्केट देख रहे हैं वो अभी सिर्फ 5% मार्केट होएगा सर. जो अभी ग्रोथ होना है इंडिया के अंदर, दैट इज ह्यूज. एंड विद द बिग ऑफ कंपनीज इन्वेस्टिंग इन इंडिया, lot of marketing spends will also increase. Yeah. So in terms of supply also, you have a new infrastructure which is coming up, and in terms of your demand also, there are a lot of advertisers which are coming up, new companies which are investing in India. आज की डेट में सर टेस्ला इंडिया आ रहा है. So बिल्कुल whole visualization towards EV, towards India and towards big brand is completely changing. And we want
part of the growth story, and we want our investors also to be part of this growth story, sir. Okay. No, I think understood. So, Raghuji, can we take this as a kind of initiative and your vision, like what you said now, that this is your initiative and vision for the company, that you want to increasingly have a larger share of the bite of that advertising market, which is going to happen in our country, and you want to remain at the forefront by taking your own initiative. So, is this thinking right? Yes, sir. Very correctly put up. ठीक है सर. सर दूसरी बात मुझे पूछनी थी अभी, यू हैव बीन द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर. सर फंक्शनली आप क्या रोल देखते हैं? डू यू लुक एट एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, डू यू गेट न्यू बिजनेस फॉर द कंपनी? सर थोड़ा बहुत मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि यू नो हाउ वेल इट इज बिल्ट इन आवर कंपनी. सर हमारी कंपनी के अंदर आई लुक आफ्टर स्ट्रैटेजी एंड टाई-अप्स. दैट इज व्हाट माय कोर स्ट्रेंथ इज. Then we have Nitesh Nagpal, who is our chief business officer, who looks after the new business development. We have an VP operations who take care of the operation bit of it, where जो order आता है उसको कैसे execute करना है. We have a CFO, Mr. Rajat Singh, and he handles the complete finance part. Okay, fine. So basically, the team is very well built. All functional roles are taken care by professionals in the company. Good to know. Raghuji, last question, which is very elementary. We ask all the promoters. Sir, हमारे धंधे में main risk क्या है? What is the risk? I mean, if advertising is a function of how the economy is performing, how companies are delivering. Because obviously, if companies do well, they spend money on advertising. But sir, आपके हिसाब से जब आप ये company चलाते हो, तो 24/7, what is the most important risk factor which you like to minimize and which you have kept under control? What would that be? If you could please tell us. Sir, our main risk factor is the utilization of the inventory which we hold. Okay. And the better utilization, better profitability, because our I'll say our fixed expenses are fixed. Whereas once we have a better utilization, our profits improves, our top line improves. So we are on a double-edged sword, I'll say. Exactly. If we perform so well. If we are not able to sell and utilize that inventory, then it is a problem. Okay. That is the only threat which we see. But by God's grace, 15 years and everyone has been kind. We have seen the growth. We have built up the inventory. We have seen double-digit profits. So, and I'm sure that going forward also we will carry this thing. I think, sir, very nicely mentioned by you, and I think, sir, you will definitely be successful going forward also, sir. हमारी तरफ से, सर, मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस, सर. और पब्लिक के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, सर. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir.